होटल इंडस्ट्री की जो ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ होटल में नहीं, वो सर्विस इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो एक कंसल्टेंसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज? HR भी पढ़ाते हैं हम, आपको फाइनेंस भी पढ़ाते हैं हम, सेल्स एंड मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं हम, गैस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाते हैं। What confidence the hospitality gave me first is the entrepreneurship. There are so many opportunities, not just it's about food and service. नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल मल्होत्रा है और आज के KRMU टाइम्स पॉडकास्ट का हमारा टाइटल है एक्सप्लोरिंग द डायनेमिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी इंडस्ट्री। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अंजना सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम KRMU टाइम्स पॉडकास्ट में। एंड शी हैज़ ओवरऑल 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड एकेडमिक्स। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। Thank you, Kushal. Thank you for giving me the opportunity to talk about hospitality industry. It's been a very long journey that I have associated with hospitality. I did my graduation from IHM Bombay, and after doing my graduation, I worked in the hotels like Hyatt, Taj, Imperial in area of front office. And then I realized that yes, I want to do my masters. At that point of time, there was no such masters in hospitality, but thankfully IHMs started their first batch with the masters in hospitality administration. I joined there. I did my specialization in HR. I worked in the HR in the Radisson Group, and thereafter I got the opportunity to work with the IMT Group with respect to as an academician. So my academic journey started from that particular group, and after that I realized that yes, this is the area where I want to make a career out of it, and I did my PhD in hospitality itself from Indira Gandhi National Open University. So yes, it has been an amazing journey as the hospitality is concerned, the academic is concerned, and the hotels are concerned. What motivated me to work in the hotels is there is no single day which is same. So when you work in the hotels, you interact with so many guests with different cultures. So it just gives you so much of opportunity to know about their cultures. There are so many growth opportunities, not just in the area of front office, but overall as a hotel. You're not restricted to hotels. You can, work in the other service area as well. So there are a number of things that we learned over the period of time when we were working in hotels. So it has been a tremendous and amazing journey. तो मैम आपकी बात सुन के लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिलेंगी। हाँ जी, तो sure. एक मेरा बहुत मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर डे गोइंग? Very good, especially when it started with you, and जहाँ पे हमें opportunity मिलती है अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, fantastic. ओके मैम, तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी वो जानना होगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि हॉस्पिटैलिटी जो है वो सोली फूड्स एंड बेवरेजेस पे ही डिपेंडेंट है, तो उसके अलावा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक हॉस्पिटैलिटी और एकेडमिक्स के आई थिंक वेरी करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब हमने भी हॉस्पिटैलिटी या होटल्स ज्वाइन किए थे, हमारे पास कोई पॉडकास्ट नहीं था, हमारे पास कोई गूगल बाबा नहीं थे, तो हमें भी बहुत आइडिया नहीं था हॉस्पिटैलिटी के बारे में. It's only when we got into the hotel industry, when we got into the program, we realized कि there are so many opportunities, not just it's about food and service. तो होटल मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है उसमें 4 कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक होता है फूड एंड बेवरेज, एक होता है फूड प्रोडक्शन, एक होता है हाउस कीपिंग और एक होता है फ्रंट ऑफिस. इसके अलावा देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज होटल इज़ एन इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री में आपके सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, इंडस्ट्री में आपके HR भी है, इंडस्ट्री में आपके परचेज भी है, इंडस्ट्री में से आपकी सिक्योरिटी भी है, फाइनेंस भी है. सो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम दीज कोर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स वेयर स्टूडेंट्स कैन जॉइन. एंड होटल इंडस्ट्री की जो ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ होटल में नहीं, वो सर्विस इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो एक कंसल्टेंसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो देर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन यू आर अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट. Not just hotels, entire service industry is open for you. Okay, so what is the difference between tourism, hospitality and services? Again, amazing question, because हम हमेशा tourism, service और hospitality को शायद गलत जगह यूज़ करते हैं. Tourism is a broad term.
where let's say if I am a tourist and you are a tourist, और आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आपका जाने से लेके आने तक जो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी वो आपका टूरिज्म है. तो सो फॉर एग्जाम्पल टाइप बनता है. हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एयरलाइन बुक करी या ट्रेन बुक करी तो वो पार्ट ऑफ टूरिज्म है. आपने अकोमोडेशन बुक करी, आप कहीं पे रहेंगे, वो आपका टूरिज्म का पार्ट है. टूरिस्ट गाइड्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, आप जिस एरिया को महसूस करना चाहते हैं वो पार्ट ऑफ टूरिज्म है. आप जो वहाँ के वेंडर्स से इंटरैक्ट करते हैं, आप वहाँ से जो सामान लेते हैं, आप जो मोमेंटोज लेते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ टूरिज्म. सो टूरिज्म encompasses all the industries which are experienced while as a tourist. Whereas सर्विस क्या होती है? सर्विस ये है कि एक ट्रांजैक्शनल मोड है कि मैंने आपसे एक ट्रांजैक्शन किया, मैंने आपसे लेट्स से एक फूड ऑर्डर किया, आपने मुझे फूड डिलीवर किया, दैट्स अ सर्विस. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, आप उनको चेकअप कराते हैं, आप उन्हें सर्विस लेते हैं और आप उन्हें पे करते हैं. सो दैट्स अ सर्विस. टैंजिबल, इंटैंजिबल दोनों आते हैं. Whereas what is hospitality? Hospitality is communicating with the guest. Hospitality is about creating experience for the guest. वो experience जो guest को हमेशा याद रहे, जो कि उसको हर बार कहे कि अगर मैं वापस उस जगह पे जाऊं तो मैं उसी जगह पे जाऊं जहां पे मुझे ये positive experience मिला. So hospitality वो आपको experience देता है. ओके मैम, जैसे हॉस्पिटैलिटी का आपने बताया कि एक गेस्ट को अच्छा लगना चाहिए और वो यादगार होना चाहिए, तो उसके लिए मतलब आप टोनल क्वालिटी एक व्यक्ति की या फिर वो किस तरीके से बात कर रहा है उसकी वो सारी क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी पे जब हम ज्वाइन करते हैं, जब होटल में हम ज्वाइन करते हैं, साइकोलॉजी से भी यस आई थिंक होटल ग्रेजुएट्स को यही सिखाया जाता है. एंड आई थिंक जब आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि होटल इंडस्ट्री में क्या अच्छा लगा था, तो जब मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता था, जब मैंने ज्वाइन किया आई रियलाइज्ड कि ये प्रोग्राम आपके सॉफ्ट स्किल्स पे काम करता है. और सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है, सबसे पहले सॉफ्ट स्किल अगर मैं जानना चाहूँ तो एम्पैथी, कि आप अपने आप को गेस्ट की जगह पे रख के देखते हैं और सोचते हैं, तो आपका पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो गया है. आपको ये और कॉन्फिडेंट बनाता है बिकॉज आप हर तरीके के कल्चर में गेस्ट से बातचीत कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सॉफ्टनेस भी आ गई है. आप कर्टियस हैं, कुछ भी हो जाएगा, आप में पेशेंस आएगा, आप अपनी आवाज़ रेज नहीं करेंगे बिकॉज आप ये चाहते हैं कि गेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा हो. आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही प्योर हार्टेड, इंटेंट और ऑनेस्ट है. तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, दिन रात सीखते हैं, so hotel management graduates actually learn soft skills as well as the hard skill. So ये जितना emphasis आपके skill पे है कि खाना कितना अच्छा बनाना है, सर्विस कितनी अच्छी करनी है, बेड कितना अच्छा साफ होना चाहिए, ये इस पे भी काम करता है कि जब आप गेस्ट से इंटरैक्ट करें तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कर्टियस हैं, आप कितने पोलाइट हैं. एट द सेम टाइम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अप्रोच पे ध्यान देते हैं. हमारा काम प्रॉब्लम को क्रिएट करना नहीं है, उसको सॉल्व करना है. सो ये जब इंटेंट आता है तो ऑटोमेटिकली गेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा होता है. वाह मैम, तो एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपको 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस काम में, तो आपने जब शुरुआत की थी और अब आप हॉस्पिटैलिटी को देखते हैं तो क्या चेंजेस इवॉल्व हुए इस टाइम पीरियड के अंदर? लॉट्स ऑफ चेंजेस. और मुझे इसके डीमेरिट्स भी बताना कि क्या आपको पसंद नहीं आया. ओह, आई थिंक बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट हॉस्पिटैलिटी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको डीमेरिट्स उतने अच्छे से बता पाऊंगी. सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स. आई थिंक आई हैव मेजॉरिटी आई हैव सीन स्ट्रेंथ. See, when I entered into hospitality, again, I always say I come from a background, I had taken non-medical. मेरी फैमिली इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो नो आइडिया, बिल्कुल ही अलग निकल गए विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी. बट वॉट कॉन्फिडेंस द हॉस्पिटैलिटी गेव मी फर्स्ट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप. ये एक ट्रेंड है जो कि अभी तक चलता आ रहा है कि व्हेन यू बिकम अ हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट आपकी एक जॉब एम्प्लॉयमेंट पक्की है. ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी फिक्स्ड एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ये एक इकलौती इंडस्ट्री है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को प्रेफर करती है. वरना आप यूजुअली आप क्या कहेंगे, मेरे को MBA करना है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट हॉस्पिटैलिटी इज़ वन एरिया जो कि आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करती है और बहुत वेलकमिंग है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए. सो दैट्स वन एरिया. जब हम लोगों ने होटल्स ज्वाइन किए थे, येस इट इज़ अबाउट लग्जरी हॉस्पिटैलिटी वेयर इट वॉज ऑल अबाउट गिविंग लग्जरी टू द गेस्ट. वी
विल इंश्योर कि हमारी लॉबीज़, हमारा एम्बियंस, हमारे रूम्स, वी हैव बेस्ट ऑफ द अमेनिटीज़ एंड सर्विसेज. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ चेंज टू मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी. मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी ये है कि जहाँ पे हर गेस्ट जो है जिस तरह का एक्सपीरियंस चाहता है, जिसको हम पर्सनलाइज गेस्ट सर्विस कहते हैं या कस्टमाइज गेस्ट एक्सपीरियंस कहते हैं, हम उसकी तरफ बढ़े. वेयर इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट लग्जरी, इट इज़ अबाउट पर्सनलाइजेशन एज वेल, राइट. एंड वी डोंट हैव बायस कि हम गेस्ट को जज नहीं करते कि ये जज क्या जर्मन है, ये जज क्या चाइनीज़ है, ये जज क्या इंडियन है. हमारे लिए गेस्ट ऑल आर सेम एंड वी बिलीव इन पर्सनलाइजेशन. सो आफ्टर लग्जरी टू पर्सनलाइजेशन, नाउ वी आर इंश्योरिंग that the technology has come in, और वो हर इंडस्ट्री में आया टेक्नोलॉजी. सो जहाँ तक कि गेस्ट सेफ्टी का सवाल है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस का सवाल है और इन्हांसिंग गेस्ट एक्सपीरियंस का सवाल है, जो कि हॉस्पिटैलिटी है, टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन इनटू पिक्चर वेयर यू सी रोबोट्स कमिंग इन, वी सी सर्विस ऑटोमेशन कमिंग इन, जहाँ पे वर्चुअल रियलिटीज़ के थ्रू आप पूरे रूम को एक एक्सपीरियंस कर सकते हो. फिर उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो इम्प्रूव हुई है, गेस्ट एनालिटिक्स इम्प्रूव हुए हैं. वी नो एवरीथिंग अबाउट गेस्ट वेल बिफोर इन एडवांस through his LinkedIn profile, through his other social media profiles. So we know what his likes are, what his dislikes are. So accordingly हमारी services जो हैं बहुत personalized हो जाती हैं. So over the period of time it has only improved, where one can see that the guest experience has gone exceptionally well. If I talk about demerits, as such there are no demerits, because people say that yes, AI has taken over, employment पे effect है कि नहीं है. In India especially, I can talk about it, human touch is very important in hospitality. मैं मशीन से बात करके मैं exceptionally experience नहीं दे सकती. मेरे को human touch चाहिए. मुझे I need someone to talk to who smiles at me, who is positive, who is greeting me well. So these experiences can only be provided by the hotels. AI can give you the information, but decision making will always be lying with the employees who are working, and emotions as well. So I can understand what he's going through irrespective of the fact कि मेरे को data क्या कह रहा है. So I think hospitality again is one area where humans will be required. है तो सही मैम, डिमेरिट ये डिमेरिट नहीं, बहुत अच्छा मेरिट है कि मेरे को ह्यूमंस को अब ज़्यादा काम पे फोकस नहीं करना, गेस्ट पे फोकस करना है. क्योंकि काम आपका AI कर रहा है. हाँ, ये बात, काम भी आसान हो गया मतलब वो वाला. जी. अच्छा, अब मैं भी ये भी देखता हूँ, आजकल हम लोग होटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स का बहुत चलन हो गया है. तो वो कल्चरल को कैसे बढ़ावा दे रहा है हॉस्पिटैलिटी? बहुत चीज़ों में बढ़ावा दे रहा है. इनफैक्ट हमारा जो फूड है, we have started talking about local food nowadays, and obviously Indian food, Indian hospitality, Indian service, Indian culture is famous like anything. So whenever anybody comes for leisure traveling, जहाँ हमारी resort properties हैं, we ensure कि वो जिस area में हैं वहाँ का जो local food है, local culture है, local hospitality है, जैसे कि अगर हम राजस्थान में जाएं, so there will always be a greeting पधारो. So these are the things which has been adopted by all the 5-star luxury hotel as well, and so to ensure, and local tourism is also coming into picture. I think this is also one of the trend where Airbnb has picked up very well. Airbnb के जो hotels हैं उनका objective यही है कि you stay with the local and experience the local. Dormitory वगैरह भी. Dormitory वगैरह. So right from dormitory to, अगर आपको Britney Spears का भी घर अगर through lodge में चाहिए तो वो आपको Airbnb के through मिल जाएगा. So all these things have been made very easy for the guest. Whatever experience that the guest wants to have, he will have it through hospitality itself. And yes, the local culture is something that India always takes a pride in. हमारे food पे भी always takes a pride in. हमारे मसाले, हमारा जो songs हैं, हमारे जो dances हैं, हमारी जो hospitality है, we always ensure as a hospitality कि that is reflected in our services too. Wow. तो एक क्वेश्चन जो व्यूअर्स कब से जानना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो हॉस्पिटैलिटी में आए
तो क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ओपन है? यस, बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। आई थिंक हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम जब हम कभी भी ज्वाइन करते हैं, जो सबसे अच्छी बात हम लोगों में, जो मुझे लगता है हमारे प्रोग्राम्स को अलग करती है बाकी प्रोग्राम से, वो है इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स जो हैं हमारी 6 मंथ्स की मिनिमम होती हैं, एंड वो क्या, उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस of the hotel. So you are not restricted to one department. You go through each department and you understand कि hotel function कैसे करता है। और वो जो internship है वो बच्चे के decision making में भी help करती है कि मैं किस area में जाना चाहता हूँ, rather than me telling theoretically कि भाई ये चीज़ ऐसे है या ये चीज़ ऐसे है। जब मैं खुद experience करूँगी कि yes what all goes in which department और मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ future में, so that helps in decision making for the student कि मेरे को क्या करियर बनाना है। और यूजुअली आजकल जब 4 ईयर प्रोग्राम्स में वी विल सी 2 इंटर्नशिप्स। एक इंटर्नशिप है जेनेरिक और एक इंटर्नशिप है मेरी स्पेशलाइजेशन, विच मीन्स कि होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स या कलनरी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम 2 इंटर्नशिप्स करें, एक सारी डिपार्टमेंट्स पे और एक हम जिस जगह पे जाना चाहते हैं। बोथ 6 मंथ्स के होते हैं एंड यू कैन गो नेशनल, यू कैन गो इंटरनेशनल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट चॉइस कि वो अपना एक्सपोजर कैसे चाहते हैं। ये जो कलिनरी आर्ट आपने वर्ड यूज़ किया, इसको आप थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं? हाँ जी, तो आजकल हमारे इन आवर टाइम्स एंड दिस इज़ द इवोल्यूशन विच हैज़ हैपेंड वेयर वी यूज्ड टू हैव ओनली अ सिंगल प्रोग्राम। सो अगर किसी को किचन में या कलिनरी एरिया में जाना है या सर्विस में जाना है या फ्रंट ऑफिस में जाना है या हाउसकीपिंग में जाना है, वी यूज्ड टू हैव ओनली वन प्रोग्राम विच इज़ होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम culinary space has increased like anything, so there was an opportunity where we need to have a other program for the students who are only interested in culinary. एंड सो होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा, राइट फ्रॉम फ्रंट ऑफिस टू कलिनरी एज वेल, टू हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस एंड अदर एलाइड एरियाज। वेर एज जो कलिनरी प्रोग्राम होगा दैट विल बी वेरी फोकस्ड ऑन द कलिनरी स्पेस, बट कलिनरी में जो हमारे डिफरेंट एरियाज होते हैं, सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ किचन। हम उसको मेन किचन कहते हैं, हम उसको सैटेलाइट किचन्स कहते हैं, वी हैव अ सैलड सेक्शन, वी हैव अ बुचरी सेक्शन। सो हम पूरे किचन्स में आपका एक्सपोजर होता है। And after that, what area you want to specialize in? So let's say I want to be a continental chef, I want to be just a bakery and patisserie chef, or I want to be a French chef, or I just want to be an Indian chef. तो मैं किस एरिया में स्पेशलाइज करना चाहती हूँ वो मैं कलिनरी अपने प्रोग्राम में डिसाइड कर सकती हूँ। अगर आप टूरिज्म चूज करते हैं तो उसके अंदर क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं? टूरिज्म के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। सो सबसे पहले जो हमारी जेनेरिक इंटर्नशिप है वो तो होटल्स में ही रहेगी। जो फाइनल स्पेशलाइजेशन एरिया होता है उसमें हम टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि टूरिज्म स्पेस में डील करती हैं, जो कि टूरिज्म आइटनरी बनाती हैं। आजकल इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफिसेज हमारे इंडिया में खुल गए हैं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ हांगकांग टूरिज्म, वी हैव अ स्पेन टूरिज्म एंड वी हैव डेस्टिनेशन मैनेजमेंट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जो कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस को प्रमोट करते हैं। और आप टूरिज्म की रिसर्च कंसल्टेंसी एरिया में भी आ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप टूरिज्म में किस एरिया में जाना चाहते हैं। विद टूरिज्म You earn tourism by being part of the tourism organization. So tourism organization के अंदर में भी sales and marketing है, tourism organization के अंदर भी HR है और उनके operations area है जिसमें आप itinerary बेच रहे हैं, जिसमें आप किसी space को बेच रहे हैं या जिसमें आप किसी area को sell कर रहे हैं। So all those are part of your tourism space as well. आप टूरिस्ट गाइड भी बन सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज़ अमेजिंग इंकरेजमेंट टूवर्ड्स बिकमिंग अ लाइसेंस टूरिस्ट गाइड। सो अगर मैंने टूरिज्म और या होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है, आई कैन ऑल्सो गो अहेड एंड सी दैट आई कैन मेक द अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू tourism guide. So these are the options that are available with respect to a hotel graduate, where he can join tourism, he can join airlines, he can join restaurant, he can join hotels. So there are various opportunities. तो ये पूरा एक इवेंट है जिसको मैनेज करना पड़ता है। So in fact hotel managements are also joining events. तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज एक अलग होती हैं जहाँ पे आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो, और इवेंट्स में भी आपकी सोशल इवेंट्स हैं, आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, आपके एंटरटेनमेंट इवेंट्स हैं। So students are also, the hotel graduates are also venturing into entertainment business with respect to events. जैसे अभी आपने बताया कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपने बताया था कि इंटर्नशिप आपको मिल जाती है
हॉस्पिटैलिटी हाँ जी, हाँ जी, कोई भी जो अगर मेरे किसी भी बच्चे ने अगर प्रोग्राम ज्वाइन किया है 4 साल का, तो वो इंटर्नशिप उसका पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। अच्छा। 2 इंटर्नशिप्स, एक इंटर्नशिप यूजुअली जेनेरिक होता है और एक इंटर्नशिप आपका स्पेशलाइजेशन मोड में होता है, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं। सो लेट्स से आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर फॉर एग्जांपल, सो आई वांट टू ओपन अप माय रेस्टोरेंट। सो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आपकी जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो आपकी रेस्टोरेंट में हो, वेयर यू अंडरस्टैंड कि कैसे हो रेस्टोरेंट ओपन किया जाता है, कैसे उसके किचन सेटअप्स होते हैं, क्या उसका सर्विस सेटअप होता है, सो दैट यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन देयर। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपका स्पेशलाइजेशन एरिया है, आपकी इंटर्नशिप वैसे ही सेटअप होती है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी ऐप्स बन गई हैं जिसमें हम कुक भी घर पे बुक करते हैं। हाँ जी। तो क्या भी वो भी पार्ट है हॉस्पिटैलिटी का? That could be the future with respect to if let's say कि आप culinary program join करना चाहते हैं और culinary program join करने के बाद आपने थोड़ा काम कर लिया, now you want to start up, आप कुछ करना चाहते हैं, तो yes आप अपने अंडर कुछ कुक्स को हायर कर सकते हैं, कुछ शेफ्स को हायर कर सकते हैं और आप एक अपना बिजनेस ऐसे ही सेटअप कर सकते हैं। सैटेलाइट किचन, सैटेलाइट कुक्स, ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम। वही जो टिफिन बॉक्सेस वाला चलता है वो सब उसी के Everything, अंदर आता है। anything. So, like I said, कि entrepreneurship is one of the, I would say, a very obvious, career for a hospitality graduate. और उसमें आप, you can think of various areas कि आप किस एरिया में और कैसे करके आप अपना entrepreneurial option खोलना चाहते हैं। तो इसमें थियोरेटिकल स्टडी क्या रहती है मैम? थियोरेटिकल स्टडीज़ रहती हैं क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। वी ऑलवेज से होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, विच मीन्स कि हम आपको मैनेजमेंट क्या पढ़ाएंगे। ये मतलब थियोरेटिकल है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है? It's a very balanced blend of theory as well as practical. So हम आपको theory भी सिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सर्विस करना एक अलग बात है, बट सर्विस को समझना कि किस तरीके। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस, वी हैव प्री प्लेटेड सर्विस, वी हैव सिल्वर सर्विस, वी हैव बुफे सर्विस, वी हैव गैरेडॉन सर्विस। सो वी हैव थियोरीज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। सो इसकी थियोरीज भी हैं और इसका मैनेजमेंट पार्ट भी है। सो हम आपको HR भी पढ़ाते हैं, हम आपको फाइनेंस भी पढ़ाते हैं, हम सेल्स एंड मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं, हम गैस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाते हैं। सो देयर आर वेरियस थियोरीज अटैच्ड टू फूड एंड सर्विस। तो हम थियोरी भी पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, सो दैट व्हेन यू पास आउट यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग एंड से कि यार ये तो हमें बताया ही नहीं था। ये भी मास कम्युनिकेशन ही हो गया एक तरीके से। हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पहली इंटर्नशिप कैसी थी और कैसी रही, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला उससे? ओके, क्या उसने आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया? हाँ, आई थिंक द वेरी फैक्ट जब से मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया तब से मैं मोटिवेटेड रही और स्टेप बाय स्टेप मेरा बूस्ट भी चलता रहा। सो जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी वो लव मेरिडियन दिल्ली में थी एंड द एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स में हमें एक्सपोज किया गया। सो आई वर्कड इन द किचन्स, आई वर्कड इन द सर्विस एंड आई वर्कड इन हाउस कीपिंग एंड आई वर्कड इन द फ्रंट ऑफिस, आई वर्कड इन द HR and all the other allied departments of the hotel. And everybody in the hotel was so supportive. They made us learn everything so much. So हमें खुद बुला के खुद सिखाते थे. So that actually helped me also to understand कि मैं after passing out my HM क्या करना चाहूँगी. And that is where I thought and I made my decision कि yes, I want to go into the front office and make my career after my 3 years of graduation. So yes, internship plays a very big role in shaping you. In shaping your confidence and also to ensure कि yes, what you want to do after your 3 years of graduation or 4 years of graduation. आप बहुत सारे गेस्ट से मिले होंगे, तो कोई एक ऐसा गेस्ट है जब आपको गुस्सा आया हो फिर बाद में हंसी भी आई हो उस पर? वेल हमारी ट्रेनिंग ऐसी ही होती है कि हम गेस्ट पे गुस्सा नहीं करते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम होती भी है सो वी ऑलवेज थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि क्या गलत हुआ। मतलब कोई ऐसी मेमोरी हो किसी गेस्ट की? आई थिंक एक गेस्ट के साथ था और वो मेरी इंटर्नशिप में नहीं था, वो मेरी जॉब में था, वेयर आई वाज टेलिंग हिम एंड फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी आई वाज टेलिंग हिम कि यू नीड टू शो मी एन आइडेंटिटी एंड प्रॉबेबली गेस्ट थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई। But so we had a little bit of, I would say, communication where I was telling him the importance of showing his identity. So after all, yes, I think he understood, and the guest was also cooperative and supportive. He understood it, and I think he realized the next morning what mistake he did, and he was apologetic about it as well. So yes, these things happen in the industry, but at the same time, guests also understand over the period of time.
अच्छा, तो जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं और पार्ट लेना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी में, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप। सो हॉस्पिटैलिटी, आई थिंक जो भी बच्चे इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं और अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा उनके लिए यही एक मैसेज है, इट्स अ ब्रिलियंट करियर अपॉर्चुनिटी। आपको एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग विच इज़ गारंटीड आफ्टर 4 years ऑफ योर ग्रेजुएशन, and you will have amazing experience while working in the hotel. Like I mentioned कि आपका कोई भी जो दिन है वो एक जैसा नहीं होगा. You will interact with so many people, with so many different cultures, and you will your general knowledge will improve like anything, and your communication with your seniors, with your guests, with your peers, with everyone will only make you more confident and more eligible for other service industry. So yes, that's an amazing opportunity that students can have. Thank you, ma'am, and it was a great pleasure having you on this podcast. Thank you so much for having me here. मैं आशा करता हूँ जो मज़ा हमको यहाँ पे पॉडकास्ट में बात करने में आया वो व्यूअर्स को भी आया होगा और शायद अब उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. Hopefully, otherwise I'm also available. So whenever, anytime you want me to understand and probably clarify on certain issues. तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं यहीं पे, बट हम और भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे. आई होप आप सबको भी ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें अच्छा लगा है. और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी हो या कुछ भी तरीके का फीडबैक देना हो तो यू कैन गिव टू दिस गिवन मेल आईडी. थैंक यू सो मच. नमस्कार. नमस्कार.